the trigger point for shame, fear, guilt, death, condemnation is the cross, and God redeemed that picture. और जो ट्रिगर पॉइंट है क्रूस का, जो क्षमा और जो लज्जा को लेकर आता है, वो परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया है। Any trigger points that you have in your life ऐसा कोई भी ट्रिगर पॉइंट जो आपके लाइफ में है, that reminds you of a trauma, जो आपको एक बुरे पास के बारे में दिखाता है, that reminds you of your shame, और आपको आपके लज्जा के बारे में दिखाता that है, reminds you of your background or your past that seems irredeemable. और आपको ऐसे पास के बारे में दिखाता है जो छुड़ाया नहीं जा सकता। Jesus redeems it right now और in the यीशु name of मसीह उसको Jesus. छुड़ा रहा है अभी यीशु मसीह के नाम में। It's good to see you. और अच्छा है आपको देखने में, You don't seem happy to see me, but yeah, और आप खुश नहीं लग रहे मुझे देखकर, it's good to see you. Can you smile a bit? और थोड़ा आप मुस्कुरा सकते हैं Just bring the temperature of this room down just a ताकि little. वातावरण थोड़ा Yeah. ठंडा हो जाए, Yeah, amen. Come on, just take a deep breath. और लंबी सांस लें। Everything is cool. इतनी भी लंबी ना ले कि दूसरे को निगल ले, but हाँ, just take a deep breath. लंबी सांस लें। Amen. Come on, God is good. परमेश्वर अच्छा है, We have a good God. हमारा एक परमेश्वर भला है। Amen. Amen. Come with me to Romans chapter 1 verse 16. और हम खोलेंगे रोमियो उसकी 1:16। Romans 1 verse 16. रोमियो 1:16। For I am not ashamed of the gospel, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, for it is a power of God for salvation to everyone who believes. इसलिए कि वह एक हर विश्वास करने के लिए सामर्थ है। I am not ashamed of the gospel, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, for it is a power of God for everyone who believes. और ये परमेश्वर के निमित्त सामर्थ है उन सभियों के लिए जो विश्वास करते हैं। The power of God is in the gospel. और परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के सुसमाचार में है। Gospel means good news. सुसमाचार का मतलब अच्छा समाचार है। Gospel means good news. सुसमाचार का मतलब अच्छा समाचार है। Gospel is not bad news. और सुसमाचार बैड न्यूज़ नहीं है। Gospel means good news. और गॉस्पेल का मतलब है अच्छा सुसमाचार। Amen. And in the gospel is the power of God. और सुसमाचार के अंदर सामर्थ है। But have you thought, why is Paul using the word, I am not ashamed of the gospel? और आपने सोचा है कि पौलुस इस बात को क्यों यूज कर रहा है कि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं? Because there are some people who are ashamed of the gospel. क्योंकि कुछ लोग हैं जो सुसमाचार से लज्जाते हैं। Okay? Why will you be ashamed of the gospel if it is the power of God? आप क्यों सुसमाचार से लज्जाएंगे अगर वो परमेश्वर की सामर्थ है? Because the appearance of the gospel does not look glorious. और क्योंकि जो सुसमाचार है वो दिखने में महिमामय नहीं लगता है। But there is a power of God. If you see beyond the appearance, there's a power of God unlocked. परंतु देखने के अलावा अगर आप महसूस करेंगे तो उसमें सामर्थ है। See, okay, let me read you one more verse. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. और हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 1:18। For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की खता नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। The reason why the gospel does not look glorious, the reason why people are ashamed of the gospel, it is because the picture of the gospel is the cross. और क्योंकि सुसमाचार हमें इसलिए महिमामय नहीं लगता है क्योंकि उसका जो चित्र है वो क्रॉस है, वो क्रूस है। Cross for a very long period of time was a symbol of guilt, shame, fear, death, condemnation. और जो क्रूस है वो बहुत समय के लिए एक लज्जा का कारण था, एक लज्जा का चित्र था। So if the Romans would crucify people on a high mountain so that everybody else would see it, and they would be reminded of that if they ever did a treason against the Romans, the same thing would happen to them. और रोमी लोगों को क्रूस के पहाड़ के ऊपर क्रूस पर चढ़ाया करते थे ताकि लोग जब देखें वो हिम्मत ना कर पाए रोमी लोगों के विरुद्ध जाने के लिए। When the person is on the cross, they are not just tied by a rope. Nails are pierced into their hands and feet.
और जब लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता है उनको सिर्फ बांधा नहीं जाता परंतु कीलों को उनके ऊपर ठोका जाता है And there's no cloth left on them. और उनके ऊपर कोई भी कपड़ा बचता नहीं है They're completely uncovered. They're completely stripped naked on the cross. और उनके शरीर से सारे कपड़ों को निकाला जाता है और नंगे उनको क्रूस पर लटकाया जाता है And if Jesus could redeem the symbol of shame, guilt, fear, and condemnation and death, what can he not redeem in your life? अगर यीशु मसीह उस लज्जा के चित्र को उस मृत्यु के चित्र को छुड़ा सकता है तो क्या वो नहीं आपके लिए कर सकता The symbol, the picture of cross was a trigger point for so many people. और बहुत लोगों के लिए जो क्रूस का चित्र था वो एक बहुत ही लोगों के लिए नजरिए के लिए बहुत ही खराब था Trigger point, it was a trigger. और वो एक नजरिए के लिए बहुत ही खराब था Trigger बोलो. ट्रिगर था इतना एक लोगों समझ में के आता लिए है. Trigger point. Cross triggered people's emotions in a bad sense. और लोगों के इमोशंस को वो ट्रिगर करता था क्रूस People used to get terrified having the picture of the cross. और लोग डर जाते थे जब वो क्रूस के चित्र को देखते थे What man created in its invention to create trigger points for shame, guilt, fear, death, condemnation. God redeemed it for joy, peace, righteousness, love. और जो लोगों ने डर के लिए लज्जा के लिए और मृत्यु के लिए बनाया था वो परमेश्वर ने छुड़ाया और उसको जीवन के लिए बदला Turn to somebody and say, और अपने किसी साथी के और मुड़े और कहें if you have ears, hear. और अगर आपके पास कान है तो सुने You know, Jesus said that a lot of times. और यीशु ने बहुत बार इस बात को कहा है If you have ears, hear. जिनके पास कान है वो सुने I always used to wonder, why did he say that? और मैं हमेशा सोचता हूँ परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा Isn't it- यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा Isn't it common sense, if you have ears, you will hear? क्या ये साधारण बात नहीं है कि अगर आपके पास कान है तो आप ऑब्वियसली सुनेंगे No, because when the gospel is preached, even though you have ears, you are not listening. और कई बार जब सुसमाचार का प्रचार किया जाता है आपके पास कान होने के बावजूद आप कई बार नहीं सुनते Think हैं about this. The trigger point for shame, fear, guilt, death, condemnation is the cross, and God redeemed that picture. और जो ट्रिगर पॉइंट है क्रूस का जो क्षमा और जो लज्जा को लेकर आता है वो परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया है I want to prophetically declare over your life. और मैं आपके जीवन में ये भविष्यवाणी करता हूँ Any trigger points that you have in your life ऐसा कोई भी ट्रिगर पॉइंट जो आपके लाइफ में है that reminds you of a trauma, जो आपको एक बुरे पास के बारे में दिखाता है that reminds you of your shame, और आपको आपके लज्जा के बारे में दिखाता that है reminds you of your background or your past that seems irredeemable. और आपको ऐसे पास के बारे में दिखाता है जो छुड़ाया नहीं जा सकता Jesus redeems it right now और in the यीशु name of मसीह उसको Jesus. छुड़ा रहा है अभी यीशु मसीह के नाम में The same picture that triggered a negative emotion has been redeemed by the blood of Jesus. और एक नेगेटिव इमोशन को जिसने छुड़ाया है वो अभी आपको छुड़ा रहा है Now you will think of the same picture, and that same picture will bring joy, peace, love, all the good emotions into your और life. अब जब आप उस चित्र को देखें वो आपके जीवन में आनंद और शांति को लेकर आएगा Amen. आमेन We have a good Father. हमारा परमेश्वर अच्छा There is परमेश्वर है nothing that cannot be redeemed by the blood of और Jesus. ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के लहू के द्वारा छुड़ाया नहीं जा सकता Nothing. कुछ भी नहीं Absolutely nothing. कुछ भी नहीं Nothing that you've done in the past, nothing that you can do in the future that cannot be redeemed by the blood of Jesus. ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने अपने भूतकाल में किया और अपने भविष्य में करने जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर छुड़ा नहीं सकता Amen. So Paul says, I'm not ashamed of the gospel और पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं because I can look beyond that picture क्योंकि मैं उस चित्र के विपरीत देख सकता हूँ and I can see the power of God. और मैं परमेश्वर की सामर्थ को देख सकता हूँ I have encountered the power of और God. परमेश्वर के सामर्थ को मैंने रिसीव किया है And see how he says this power of God is unto salvation. और ये जो परमेश्वर की सामर्थ है ये मेरे उद्धार की ओर ले जाती Do है you know the power of God begins with forgiveness of sins, but it does not remain there. क्या आप जानते हैं कि जो परमेश्वर का सामर्थ है वो आपके पापों की क्षमा से शुरू होता है परंतु वहां खत्म नहीं होता The power of God is not just for forgiveness of sins, it moves, that's the very beginning, but it moves into salvation. और परमेश्वर का जो सामर्थ है वो आपके क्षमा से शुरू होता है और आपके उद्धार की ओर आपको ले जाता है Healing is the proof that God has forgiven your sins. और चंगाई एक चिन्ह है कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है You know, there's a story where Jesus is teaching
and there is a crowd pressing on to him. और एक कहानी है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं और भीड़ उसके ऊपर चढ़ी जा रही है। And there was a paralytic man. और एक लंगड़ा व्यक्ति वहाँ पर था। He couldn't get closer to Jesus because of the crowd. और वो भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुँच पा रहा था। But then his friends, they had an idea. और उसके दोस्तों को ये योजना आया। They took down the roof of the place where Jesus was teaching. और जिस घर में प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे उन्होंने उसके छत को तोड़ दिया। And they brought the paralytic man down. और उस पैरालिटिक लड़के आदमी को वो लोग नीचे लेकर आए। Oh, how grateful are we for those friends, amen. और हम कितने धन्यवादी हैं उन Such दोस्तों friends. के लिए। Now Jesus is about to heal this man. और प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगाई करने पर But है। all the people are amazed. और लोग देख रहे हैं And some people are skeptical. और कुछ लोग ज्यादा सोच रहे हैं You know, what is he going to do? ये क्या करने वाला है। And Jesus says, tell me, is it easier to say that your sins are forgiven or is it easier to heal the person? और प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि ये क्या आसान है कहना कि आपके पाप क्षमा हो गए कि आपको चंगा कर दिया जाए। What's easier, forgiveness or healing? क्या आसान है पापों की क्षमा या चंगाई। Understand something, my friends. The prophets could heal. आप कुछ बात को समझे कि जो भविष्यवक्ता है वो चंगाई कर सकते So हैं। they know that people can heal. और सभी लोग जानते थे कि चंगाई लोग कर सकते हैं। But they know that men cannot forgive. पर वो जानते थे कि एक व्यक्ति एक इंसान क्षमा नहीं कर सकता Only God can forgive. और सिर्फ परमेश्वर है जो क्षमा कर सकता So है। Jesus, to prove that what he said is true, he first said your sins are forgiven and then he said rise up and walk. और अपनी बातों को प्रूव करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, फिर उसको चंगा किया। Healing is the proof that you are forgiven. चंगाई वो चिन्ह है जो बताता है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। Healing is a proof that you are forgiven. चंगाई वो चिन्ह है जो बताता है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। Before your body needs salvation, your soul needs इससे salvation. पहले कि आपके शरीर को उद्धार मिले आपके प्राण को उद्धार पाना जरूरी है। Because if your body receives the healing without the forgiveness of sins, it will get back that sickness again. और अगर आपके शरीर को चंगाई मिल जाए आपके प्राण को उद्धार पाए बिना तो आपकी जो बीमारी है वो वापस आ सकती है। Amen. That's why any breakthrough that happens, it happens internally first before it happens in the और external. इसलिए कोई भी छुटकारा जो आता है जो वो पहले अंदर आता है फिर बाहर शरीर में दिखता है। You know, have you heard of this commander, Syrian commander? His name was Naaman. और एक व्यक्ति जो सीरियन है उसका नाम है नामान He had skin issue, और उसको चमड़ी का रोग है, leprosy. लेप्रेसी कहा जाता है। But he heard that there's a prophet in the nation of Israel. और इस कोढ़ी नामान ने ये सुना कि एक भविष्यवक्ता है जो वहां पर है। So he goes to prophet Elisha. और वो एलीशा के पास जाता है Prophet Elisha does not meet him. और एलीशा उससे नहीं मिलता है He just sends his messenger. और वो अपने सिर्फ मैसेंजर को भेजता है। And when Naaman meets the messenger first, he is offended. और जब नामान इस मैसेंजर से मिलता है तो वो पहले उसको दुख होता है, Why? वो बुरा Because मानता है। he came with such a big entourage, he came with such a big army, and the prophet is not even willing. क्योंकि नामान एक बड़े भीड़ के साथ बड़ी सेना के साथ आया परंतु ये भविष्यवक्ता मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। Naaman is not willing to meet him. और नामान उससे मिल नहीं रहा, भविष्यवक्ता So उससे the मिल नहीं रहा। messenger tells him, और मैसेंजर उससे बोलता है this is the prophet saying that if you go to river Jordan and you take 7 times, if you dip into the river Jordan, you shall be healed, you shall be cleansed. और मैसेंजर उससे बोलता है कि एलीशा का ये संदेश है कि अगर तू यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए तो तू चंगा हो जाएगा। You know, Naaman got so upset. और नामान वो बहुत बुरा मान गया। You know why? Because the solution to his healing was not as he expected. वो इसलिए बुरा माना कि जो उसका आंसर था वो उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं था। He thought the prophet would come, do a gimmick, wave his hand, and then, you know, he'll fall down and then something will happen. और उसको लगा कि भविष्यवक्ता आएगा अपने हाथ को हिलाएगा और वो गिर जाएगा और चंगा हो जाएगा। Some of you are not receiving your healing because you're still waiting for your expectation to happen. और आप में से कुछ लोग अपनी चंगाई को इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक तरीके से अपेक्षा करें कि परमेश्वर मुझे ऐसे ही चंगा करे। There's a certain way that you're fixed in your mind. There's a certain way that you're fixed in your mind that you want God to come through. God wants to bring the answer, but you need to stop being narrow-minded. और आप ये बोल रहे हैं परमेश्वर ऐसे ही इसी तरीके से तू मेरे जीवन में कार्य करे तभी मैं चंगा होऊंगा। God, you did
this to Pastor so and so, I also want you to do the same thing to me. और परमेश्वर आपने उस पासवान के जीवन में ऐसा किया तो मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में तो आप ऐसे ही करें। Do you know, every time Jesus healed a blind person, not 2 times it was the same way he did it. और आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने अंधे व्यक्ति को चंगा किया, एक व्यक्ति को एक तरीके से चंगा नहीं किया, Every time it was unique. और हर बार बहुत ही अलग था। Because God is a God of creativity. और परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर वो क्रिएटिव परमेश्वर है। He may not necessarily follow your rule book of miracles, but he has his unlimited plans. और शायद वो आपकी अपेक्षा के बुक के अनुसार ना करे। Amen. See what was Naaman told. और नामान को क्या क्या कहा गया? Just go to Jordan, और यरदन नदी में जा take 7 dips, और 7 डुबकी लगा and you shall be healed. और तू चंगा हो जाएगा। The prophet has already released a word of healing. और भविष्यवक्ता ने चंगाई के वचन को ऑलरेडी दे दिया है। But Naaman, listening to this, he is so offended that he is going back without being healed. और नामान उस वचन को सुनकर भी बुरा मान गया और वो वापस जा रहा है। Naaman is going back. Why? नामान वापस जा रहा है क्यों? Because he's offended. क्योंकि वो अपने मन में बुरा मान गया है। Offended, one, because Elisha didn't come to meet him. पहली बात क्योंकि एलीशा उससे मिलने नहीं आया। Elisha did not address him as, oh, the great commander of Syria. और एलीशा ने इसलिए नहीं बोला ओ इतना बड़ा कमांडर है सीरिया का। But he got what he wanted, और नामान को वो मिला जो वो चाहता था, but not the way he wanted. परंतु वैसे नहीं जैसे वो चाहता था। Are you getting this? आप सुन पा रहे हैं? He was willing to leave his healing for that offense. और वो अपनी चंगाई को छोड़ने को तैयार था उस दुख के कारण। Think about it. God wants to heal you. आप सोचें कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता God है। wants to restore you. परमेश्वर आपको रिस्टोर करना चाहता God है। wants to redeem you. परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। But are you willing to let go? क्या आप विलिंग हैं कि आप छोड़ दें उन बातों को? Are you willing to let go? क्या आप विलिंग हैं? क्या आप तैयार हैं उन बातों को So छोड़ने के many लिए? times healing has come knocking at your door, but you have rejected it because of the offense. और कितनी बार चंगाई आई आपके दरवाजे को खटखटाते हुए, परंतु आपने उस दुख उस बुरा मानने के वजह से अपनी चंगाई को खो दिया। You know, Naaman, he forsook, he did not consider the word of Elisha. और एलीशा के शब्द को उसने बिल्कुल भी नहीं सुना। In fact, it was the servants of Elisha, servants of Naaman who told Naaman, what's the big deal, master? और नामान के नौकरों ने बोला कि इतनी बड़ी क्या बात है? What's the big deal? इतनी बड़ी बात क्या You है? just need to take 7 dips in this river. तुम्हें सिर्फ जाके उस यरदन नदी में 7 डुबकी तो लगाना है। And Naaman, because he heard his servants, और नामान क्योंकि उसने अपने नौकरों को सुना, he let go of the offense. और उसने उस ऑफेंस को उस दुख को छोड़ दिया। And because he let go of the offense, और उस दुख को जब उसने छोड़ दिया, he goes to Jordan, और वो यरदन नदी की ओर जाता है takes the first dip, और पहली डुबकी लगाता है, nothing happens. कुछ नहीं होता। Takes the second dip, दूसरी डुबकी लगाता है, nothing happens. कुछ भी नहीं होता। Takes the third dip, तीसरी डुबकी लगाता nothing है, happens. फिर भी कुछ नहीं You know, होता। some of you are waiting. Oh, I got this instruction, but what does it mean? I want to understand this instruction. Unless I don't understand this instruction, I'm not going to do it. और कुछ लोग आपको परमेश्वर ने कुछ शब्द दिया है, परंतु आप ये सोच के बैठते कि मैं समझना चाहता हूँ कि ये क्या बोला गया है। You know, in the kingdom, understanding follows obedience. और जो परमेश्वर के राज्य में समझना आपके ओबीडियंस को फॉलो करता है। Do you think you can understand every instruction that comes from the Lord? क्या आप ये सोचते हैं कि आप परमेश्वर से जो हर शब्द आता है कि आप उस सब को समझ सकते Do हैं? you think you even have the mental capacity to understand what the Lord is saying? क्या आप समझते हैं कि आपके पास मानसिक योग्यता है उन बातों को समझने के But लिए? if you obey, परंतु आप जब बात को मानेंगे, your mental capacity will increase to आपकी understand. मानसिक योग्यता बढ़ जाएगी। Naaman did not understand how his healing was going to happen, नामान समझ नहीं पा रहा था कि उसकी चंगाई कैसे होने वाली है, but he obeyed the word of the Lord. परंतु उसने परमेश्वर के वचन को माना। 4th dip, उसने चौथी डुबकी को लगाया, nothing happened. कुछ नहीं हुआ। 5th dip, पांचवी डुबकी लगाई, nothing happened. कुछ नहीं हुआ। 6th dip. छठी डुबकी You know, लगाई, he could have left and gone और वो छोड़ के जा सकता था without seeing any change in his body. और बिना किसी अपने शारीरिक अवस्था में बदलाव को देखे But when हुए। he obeyed the word of God for
as it was the seventh dip, he was healed completely. और जब उसने 7वीं बार परमेश्वर के शब्द को माना तो वो चंगा हो गया। It's not in your obedience that brings the healing and the answer. It is in the word of the Lord that brings the healing. और आप परमेश्वर की बात को मानने में आपकी चंगाई नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की चंगाई है। Amen. आमेन। Your obedience is how God has instituted the technology through which the word will fulfill its purpose. और आपका जो बात मानना है वो इसमें है कि कैसे परमेश्वर अपने शब्द को, अपने वचन को पूरा करने वाला है। Amen. Amen. Luke chapter 4. Don't take it. और लूका उसका 4। Jesus has been activated into ministry. और यीशु मसीह को सेवकाई में अनुमति मिल गई है। And as soon as he gets out of the wilderness after 40 days of temptation, और 40 दिन के टेम्पटेशन के बाद जब वो परमेश्वर जंगलों से वापस there's आता a verse that says that Jesus was full of the Holy Spirit. है और वचन कहता है कि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, Full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। And he returned to Galilee. और वो गलीली में गया And he started doing a lot of miracles. और वो बहुत से चिन्ह चमत्कारों को करने लगा। Okay? But the moment people got to know that he is Joseph's son, और जैसे ही लोगों को ये पता चला ये तो यूसुफ का बेटा है, he is Mary's son, और ये तो मेरी का बेटा है, मरियम का बेटा है, something happened within them. और कुछ हुआ उनके हृदय में। And then the Bible says in Mark chapter 6 verse 5, और तब वचन कहता है उस मरकुस 6:5 में, and he could do no mighty work there, और वो कोई भी सामर्थ के कार्य को वहां नहीं कर पाया, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. और सिर्फ कुछ ही लोगों को वो चंगा कर पाया। The Bible says और वचन कहता है Jesus the Son of God could do no mighty work there. और यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है उस स्थान पर कोई भी चिन्ह चमत्कार को नहीं कर पाया। If you think, you know what, God is so almighty, so powerful, he can do whatever he wants, I'm telling you, you can limit the hand of God by your thinking. और अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर जो महान है, सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है, परंतु आप अपने सोच के द्वारा परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। In Psalms, there's a verse that says that they limited the hand of God by constantly testing him in the wilderness. और भजन संहिता कहता है कि वो परमेश्वर के हाथ को हमेशा रोकते रहे, उसको टेस्ट करने के द्वारा। Can you limit God's hand? क्या आप परमेश्वर के हाथ को रोक सकते हैं, सीमित कर सकते हैं? Yes, हाँ, with your unbelief. अपने अनबिलीफ के द्वारा, अपने अविश्वास के द्वारा। Because unbelief is considered rebellion. और अविश्वास जो है वो विरोध को दर्शाता है। Or turn to somebody and say, unbelief is rebellion. अनबिलीफ जो है, जो अविश्वास है, वो विरोध है। Okay. अपने पड़ोसी को बोलें। I'll come back to the story, but think about this. इस बात को सोचें। The Israelites are moving from Egypt. इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे हैं और जा रहे हैं, For so many years they were slaves. और बहुत सालों तक वो बंधुआई में थे, They know how to build pyramids, और वो जानते हैं कि वो पिरामिड्स को कैसे बनाना है, but they don't have the capacity to think that they can possess cities. परंतु उनके पास ये योग्यता नहीं है कि वो ये समझ पाए कि वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। They can build cities but don't have the mindset to possess cities. वो एक सिटी को बना सकते हैं, परंतु उनके पास ये योग्यता नहीं है कि वो उसको भर भी सकते हैं, वो वहां रह सकते हैं। So when God tells them in Deuteronomy chapter 1, go in, I have given you the land, go in and possess it, they are like, no, we can't do this. और जब परमेश्वर उनसे कहता है कि जाओ, अंदर जाओ और उस पर कब्जा कर लो, और वो परमेश्वर से कहते हैं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। And if you read that passage, अगर उस वचन को आप पढ़ें, and if you're like me and you see yourself in those Israelites, और अगर आप मेरी तरह हैं और आप अपने आप को उस जगह पर देखते हैं, and you see that it makes sense, yes, how can these Israelites go and possess? They were slaves. और आप सोचेंगे कि हाँ ये तो सही है, कैसे ये जो बंधुआई में लोग हैं वो जाकर उस स्थान पर कब्जा कर सकते हैं। My heart wants to empathize with these Israelites. और जो मेरा हृदय है वो उनके प्रति संवेदनशील होता है, इजरायलियों के प्रति। But God looks at it as rebellion. परंतु परमेश्वर इसको विरोध के रूप में देखता है। He's an empathetic God. वो संवेदनशील परमेश्वर है। But if you don't believe what he says, परंतु अगर आप उन बातों पर विश्वास ना करें जो वो परमेश्वर कहता है, he says it's rebellion. वो कहता है कि ये विरोध है। He says, I've chosen you. वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। And but then you know, God, I am so unqualified. और आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ। It's called rebellion. आप विरोध कर रहे हैं।
It's called rebellion. उसे विरोध कहा जाता है। Rebellion is not just, saying some bad words about God. Rebellion is not aligning yourself to what God has said. और विरोध सिर्फ ये नहीं कि आप परमेश्वर के बारे में बुरा भला कहें, परंतु उन बातों के पर अपने आप को ना रखें जो परमेश्वर ने कहा है। So come back to Jesus' story. और यीशु मसीह की कहानी में वापस आते These हैं। people, the moment they got to know that he is the son of Joseph, they got offended. और जैसे ही इन लोगों को पता चला कि ये तो यूसुफ का बेटा है, वो बुरा मान गए। Because they were like, how can he perform miracles? और वो कहते हैं ये कैसे चिन्ह चमत्कारों को कर सकता He है, does not even come from a royal legacy. और ये राजाओं के घराने से भी नहीं आता, He's not coming from a prophetic और ये background. तो भविष्यवक्ताओं के घराने से भी नहीं आता। Because the Jesus that they know, they think that he's just from Nazareth. और वो सिर्फ ये सोच रहे हैं ये नासरत से आया है, They don't know that he was born in Bethlehem. और वो नहीं जानते कि ये बैतलहम में यीशु मसीह So जन्मे हैं। because of the incorrect, incomplete information that they have, they get so offended. This guy is doing mighty miracles, and because they get offended, Jesus is not able to do mighty work anymore. और क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में पूरी बात को नहीं जानते हैं, वो यीशु मसीह से बुरा मान जाते हैं, और वहाँ पर परमेश्वर चिन्ह चमत्कारों को नहीं कर पाता। I want to show you something. और मैं एक चीज दिखाना चाहता This हूँ। verse says he could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. और यहाँ पर वो कहता है कि वो वहाँ पर कोई भी सामर्थ के काम को नहीं कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। The Greek has different words for different sickness. और यूनानी के में हर बीमारी का अलग अलग शब्द है। The sick over here comes from the Greek word arustos, और जो यूनानी शब्द जो सिक के बारे में बीमार के बारे में है वो है अरुस्तोस, which refers to individuals who are in a state of deep unconsciousness. और उनके बारे में ये कहा जाता है जो बेहोश हैं, बिल्कुल बेहोश हैं, Like people who are in coma. और ऐसे लोग जो कोमा में होते हैं। In a place, Jesus could do no mighty work except he laid hands on few people who were in an unconscious state and healed them, because the conscious people were offended, so they could not receive the healing. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उन्हीं लोगों को चंगा कर पाया जो बेहोश थे और जो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे, परंतु जो लोग सुन पा रहे थे वो अपने अविश्वास के कारण चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाए। One of the hindrance to you and me receiving God's healing is a logical conscious mind. और एक कारण जो आप अपनी चंगाई को नहीं प्राप्त कर पा सकते हैं कि वो आपका सोच, आपका समझना। Once the Lord told me, एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, Sam, I can do so much through you when you're asleep than when you're awake. और सैम मैं तुझसे बहुत कुछ कर सकता हूँ जब तू सो रहा है, इस बजाय कि जब तू उठा हुआ है। Because when I'm awake, I can limit God's hand. और जब मैं उठा हुआ हूँ तो मैं परमेश्वर के हाथ को सीमित कर सकता हूँ। Amen. आमीन। So get over the offense. तो अपने मन में जो भी बातें हैं उससे बाहर आए, Get over the offense. अपने मन की बुरी बातों I'm से telling बाहर you, आए। if there's anybody over here who's expecting God's miraculous move in their life, let go of the offense, let go of that unforgiveness, let go of that bitterness, and see God's power move through in and through your life. और अगर आप यहाँ पर हैं जो आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस ऑफेंस से बाहर आएं, आप उस अक्षमा से बाहर आएं। Amen. Amen. I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God. मैं परमेश्वर के सुसमाचार से लज्जाता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ है। It is the power of वो God. परमेश्वर का सामर्थ है। This power, the Greek word comes from this root word called dunamis, और ये जो सामर्थ के लिए जो यूनानी शब्द है वो है डूनामिस, which you hear the word dynamite. और इसको एक शब्द में ये भी कहते हैं कि डायनामाइट। In essence, Paul is saying that the gospel is the dynamite power of God. और पौलुस ये कह रहा है कि जो परमेश्वर का सुसमाचार है वो डायनामाइट सामर्थ है। One bomb destroyed 2 cities. और एक जो बॉम्ब ने उसने पूरे 2 शहर को खत्म कर दिया। I'm talking about Hiroshima and Nagasaki. और मैं हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में One बोलता हूँ। atomic bomb had the potential to destroy cities, not just for that generation but for generations to come.
एक एटॉमिक बॉम्ब ने पूरे शहर को खत्म कर दिया, ना कि उस समय के लोगों को परंतु आने वाले लोगों को भी। There are children who are born even now with deformities because of the radiation. और रेडिएशन के कारण वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके हाथ पैर मुड़े होते हैं, That's the power of the atomic bomb. और वो है एटॉमिक बॉम्ब की सामर्थ्य। And Bible says that the gospel is God's atomic power. और बाइबल ये कहते हैं कि जो सुसमाचार है वो परमेश्वर का एटॉमिक सामर्थ्य है। Gospel is God's atomic power. सुसमाचार परमेश्वर का एटॉमिक सामर्थ्य है। Amen. Gospel is God's atomic power. सुसमाचार परमेश्वर का एटॉमिक सामर्थ्य है। What can't this power not do? और क्या ये सामर्थ्य नहीं कर सकता? Amen. You know where is this power? आप जानते हैं ये सामर्थ्य कहाँ है? In God's word. वो परमेश्वर के शब्दों में है, Because gospel is God's word. क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का शब्द है। You know, when Jesus was preaching, he also healed. और जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे वो उन्होंने चंगाई भी की। His message was very simple. और उनका जो समाचार था, सुसमाचार था, वो बहुत ही आसान था। Repent, for the kingdom of God is here. और माफी मांगो क्योंकि परमेश्वर का राज्य है। मन फिराओ. Repent, for the kingdom of God is here. मन फिराओ कि परमेश्वर का राज्य निकट है। If you can change your mind, you can experience the kingdom. अगर आप अपनी सोच को बदल दें तो आप परमेश्वर के राज्य को एक्सपीरियंस कर सकते And हैं। as an evidence to his word, he healed sick people. और अपने वचन के अनुसार वो बीमारों को चंगा करता है। And that's why these people were so shocked. They were like, who is this man who speaks with so much power and so much authority that even sick people are healed and demon possessed people are delivered? और यहाँ लोग देख के आश्चर्यचकित हुए, ये आदमी कौन है जो इतने सामर्थ और अधिकार के साथ बोलता है और चंगाई देता है। The power is in God's word. और सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। Peter stands up पतरस उठता है on the day of Pentecost. और पेंतेकोस्त के दिन में He preaches. और प्रचार करता है। 3,000 people are saved. और 3,000 लोग बचाए जाते Can you हैं। imagine the power that word had? और आप सोच सकते हैं कि वो सामर्थ जो वचन में है। People 2 kilometers away who were walking on the road were so caught by the power of God. और 2 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति चल रहा था वो परमेश्वर की सामर्थ से भर जाता है। We are talking about the atomic power that is in the gospel. हम बात कर रहे हैं उस एटॉमिक सामर्थ का जो परमेश्वर के वचन में है। Gospel needs no addition. Gospel is the power of God. सुसमाचार में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, सुसमाचार ही परमेश्वर का सामर्थ है। Gospel is the power of God. सुसमाचार ही परमेश्वर का सामर्थ And है। the power is released when the gospel is और proclaimed. पावर निकलता है जब सुसमाचार को बोला जाता है, When प्रचार किया you जाता है। proclaim the gospel, power of God is released. और सुसमाचार जब आप बोलेंगे तो पावर सामर्थ निकलेगी। It's not enough to have a gun. और ये काफी नहीं है कि आपके पास सिर्फ बंदूक हो, You need to have a bullet in the gun and you have to use the trigger. और आपको उसके अंदर गोली भी होनी चाहिए और आपको उसको ट्रिगर का भी इस्तेमाल करना है। You've been having the gospel for so long. आपके पास सुसमाचार कई सालों से है, Pull the trigger. उस ट्रिगर को खींचे। You want to see power? आप सामर्थ को देखना चाहते Pull the हैं, trigger. ट्रिगर को खींचे Stop shying away. और शर्माए नहीं, Stop being ashamed. और शर्माए नहीं। The gospel is the power of God. और सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ When है। you speak gospel, when you speak the gospel, when you proclaim the gospel, God will back it up. और जब अपने मुंह से आप सुसमाचार को बोलेंगे परमेश्वर सामर्थ के द्वारा आपको पीछा करेगा। And the prime minister, he sends a letter और जब प्रधानमंत्री एक लेटर को भेजता है to all his cabinet. और अपने लोगों के, अपने आधिकारिक लोगों को, That letter is backed by the government of India. और वो जो लेटर है उसको, उसके पीछे जो गवर्नमेंट है उसका अधिकार होता So है। regardless of who brings the letter, और कोई भी उस लेटर को लेकर आए, regardless if it's the peon who is uneducated, he brings the letter. वो चाहे पियून हो जो शिक्षा नहीं प्राप्त किया, वो लेटर को लेकर The आए। letter has the same power as the words of the prime उस minister. लेटर में उतनी ही सामर्थ है जितना उस प्राइम मिनिस्टर के शब्दों में है। Stop giving yourself too much importance.
अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस ना दे। You and me are just messengers. हम सिर्फ मैसेंजर हैं। The power does not come from the messenger. The power comes from the message of the one who has sent the messenger. सामर्थ मैसेंजर के द्वारा नहीं आता, सामर्थ उस मैसेज में आता है जो जिसने उसे भेजा है। Stop worrying too much about your credibility. You have no credibility. Thank God you have no credibility. आप अपने महत्वपूर्णता के बारे में ज्यादा मत सोचें। That's why he uses the fool to shame the wise. इसलिए वो मूर्खों को उठाता है ताकि ज्ञानवानों को He लज्जित uses करे, the weak to shame the और वो strong. कमजोरों को इस्तेमाल करता है कि वो सामर्थी लोगों को लज्जित करे। Praise God that you have no credibility. आप परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आपके अंदर सामर्थ Because नहीं if है। you had credibility, you would stand in the way of the power of God. क्योंकि अगर आपके पास सामर्थ होती तो परमेश्वर के रास्ते पे आप खड़े हो जाते। Can I tell you one criteria to experience God's power? एक तरीका कि आप परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। One criteria that you can experience God's power. एक तरीका जो परमेश्वर की सामर्थ को आप प्राप्त कर सकते हैं। I'll show you the verse, 2 Corinthians chapter 12. दूसरा करंथियों उसका 12 verse 9. 12 का 9। But he said to me, पर उसने मुझसे कहा, my grace is sufficient for you, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, for my power is made perfect in weakness. क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। Grace is sufficient for you. आपका परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। God's grace is more than enough for you. आपका परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत काफी है। God's grace is more than enough for you. परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। Think of it like this. आप इसको ऐसे सोचें, You're driving a scooter, आप एक स्कूटर चला रहे हैं, but the engine the mechanic put in there was stolen from a jet engine. और उसके अंदर जो इंजन है उस मैकेनिक ने उसको जेट प्लेन से चुरा कर उसमें लगाया। Work out the technical later, but get the analogy. इतना मत सोचे, बस जो समझ लें, You have more than enough. आपकी सामर्थ बहुत है। The power in the jet engine is more than enough. जो जेट इंजन की सामर्थ है वो काफी है। Grace that God has given you is more than जो enough. अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है वो काफी है। So he says, my grace is sufficient for you. और वो कहता है कि मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है, For it is in your weakness my power is perfected. क्योंकि आपकी कमजोरी में मेरी सामर्थ बहुतायत है, सिद्ध है। The criteria to receive the power of God, you need to be weak. तो अगर परमेश्वर के सामर्थ को आपको पाना है तो आपको कमजोर बनना है। My friends, if you are strong, you cannot receive God's power. अगर आप सामर्थी हैं तो आप परमेश्वर के सामर्थ को नहीं प्राप्त कर If you सकते। think you are strong, you cannot receive God's power. अगर आप सोचते हैं कि आप सामर्थी हैं तो आप परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त नहीं The कर सकते। criteria to receive God's power is to be weak. एक तरीका कि आप परमेश्वर के सामर्थ को पाएं कि आप निर्बल बने, Because there is something about weakness that attracts God's strength. क्योंकि निर्बलता परमेश्वर के सामर्थ को अट्रैक्ट करता है। How many weak people here today? कितने निर्बल लोग हैं यहाँ पे आज? God's strength is perfected into your life. परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में परिपूर्ण किया गया है। Forget about the background. आप अपने बैकग्राउंड को भूल जाएं, Forget about your education. अपने एजुकेशन को आप भूल Forget जाएं, how little you know about the Bible. आप वचन को कितना जानते हैं आप भूल Think जाएं। about this. आप इस बारे में सोचें, If you are weak and you are available, God's power can be perfected. अगर आप कमजोर हैं, निर्बल हैं और आप उपलब्ध हैं तो परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर परिपूर्ण किया जा The सकता है। Bible says that the same Spirit of God that raised Christ from the dead, He gives life to your mortal bodies. और वचन कहता है वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा आप में काम करता है। The same Spirit of God has the power of resurrection. और वही आत्मा में पुनरुत्थान की सामर्थ है। That same Spirit is within you. और वही आत्मा आप में है। He gives life to your mortal bodies. वो आपके निर्बल शरीर को सामर्थ देता I है। praise God that the author wrote mortal bodies. और परमेश्वर का धन्यवाद, वहां पर लिखा है कि नश्वर शरीर। Otherwise, we will be saying, oh, He gives life to my spiritual bodies. अगर वो नहीं तो वो कहते कि ओ आत्मिक शरीर, He gives life to your mortal bodies. वो आपके नश्वर शरीर को सामर्थ देता है। Touch the area of your body where you're feeling sick and weak. I'm telling you, God's power is attracted towards that same area. अपने उस बीमारी के ऊपर हाथ रखें और बोले कि इसी जगह पर परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है To completely restore you.
ताकि आपको परिपूर्ण रूप से छुड़ा ले। Amen. आमेन। You know, Adam was called the life, the living soul, और आदम को जीवित आत्मा बोला जाता था, Jeevit Pran. जीवित प्राण। Christ is known as a life-giving और प्रभु spirit. यीशु मसीह को जीवन देने वाला आत्मा बोला जाता है। Again, Adam is known as the living soul. Jesus is known as the life-giving spirit. और आदम को जीवित प्राण बोला जाता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला आत्मा है। That's why in 2 Corinthians 5:17 says, you are a new species. इसलिए दूसरा कोरिन्थियों के 5:17 में लिखा है कि उसमें कहा गया है कि आप एक नए मनुष्य हैं। In Christ, you are a new species. प्रभु यीशु मसीह में आप नए मनुष्य हैं, A species that was not there before. और ऐसा मनुष्य जो पहले कभी नहीं था। You are no longer in the image of Adam. You are in the image of Christ. और आप आदम की तरह नहीं है, परंतु आप यीशु मसीह के चरित्र में हैं। The same life that Jesus has, you have it. और वही जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, आप में वो जीवन है। He gives life to your mortal bodies. वो आपके नश्वर शरीरों को सामर्थ देता है, I आप जीवन speak देता है। right now supernatural strength into your bodies और right मैं now. इसी समय परमेश्वर के सामर्थ को आपके जीवन में बोलता हूँ। Yeah. You know, whenever I think about this, I think of an analogy. और जब भी मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ, मैं इस बात को सोचता हूँ। It's a very simple picture that I have. और ये बहुत ही सिंपल चित्र है। Have you seen an electrical socket? और आपने एक इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट देखा है, एक Have you- स्विच बोर्ड देखा Have है, you seen an electrical socket? एक स्विच बोर्ड आपने देखा होगा। Yeah. If you take your pinky finger, अगर आप अपनी छोटी उंगली लें put inside the electrical socket, और उस बिजली के उसके सॉकेट में डाल दें switch it on, और उसके बटन को भी ऑन कर दें, regardless of who you are, और चाहे आप कोई भी हो, regardless of your background, आपका बैकग्राउंड जैसा भी हो, regardless of your gender, आप लड़के हो या लड़की हो, regardless of your education, आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा जितनी मर्जी हो, regardless of how much money you have, आपके पास पैसा जितना मर्जी हो, you will be electrocuted. आपको करंट लग जाएगा। I'm telling you, I guarantee you. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, I'm giving you the guarantee, so that's why don't try this at home. क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये घर जाके ट्राई ना करें, You will be electrocuted. आपको करंट लग जाएगा। You have been plugged into the life source of heaven. आपको स्वर्गीय जीवन के स्रोत में आपको प्लग कर दिया गया है। You have been redeemed from the power of darkness and you have been plugged into the life source whom we call God. आपको अंधकार के सामर्थ्य से निकाल कर स्वर्गीय सामर्थ्य में आपको जोड़ दिया गया है। Okay, tell me what Psalm 103 says. I'm sure you know this. Psalm आप 103. मुझे बताइए इस भजन संहिता 103 क्या कहता है। Do you know what it says? Okay. Bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, and all that is within me, bless his holy name. और जो भी मुझ में है उसको धन्य कहे। Okay, bless the Lord, O my soul, और धन्य, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, and forget not all his benefits. और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। Now, these are the benefits. और ये जो बेनिफिट्स हैं, ये उपकार हैं जो परमेश्वर के, Okay? These are the benefits of God. ये परमेश्वर के उपकार हैं। Who forgives all your iniquities. वो आपके हर एक अधर्म को क्षमा करता है। Oh, I didn't hear that. अब बोले Who forgives all your iniquities. जो मेरे हर एक अधर्म को क्षमा करता है। You know, all in Hebrew means all. और हिब्रू में, यूनानी में सब मतलब सब, All in Greek also means all. और ग्रीक में सब का मतलब सब है। Every iniquity that you have has been forgiven. आपके हर एक अधर्मों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। It's a benefit of God. और ये परमेश्वर का बेनिफिट है। The ये next परमेश्वर की- benefit is He heals all your diseases. और अगला ये आशीष है कि वो आपके सभी रोगों को चंगा करता But है। only you get the benefit one, you will understand the benefit two. जब पहली आशीष को आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप दूसरी आशीष को समझ सकते हैं। It's a stacked blessing. और ये एक सीढ़ी की तरह है। So you begin by,
all my iniquities are forgiven. और आप सोचते हैं कि मेरे हर अधर्म को क्षमा कर दिया You गया है, move into the next level of glory, और आप महिमा के अगले क्षेत्र में जाते हैं, that all your sicknesses have been healed. और अब आपके सभी रोगों को चंगा कर दिया गया है। Third benefit, और तीसरा आशीष, who redeems your life from the pit, और वो आपको अंधेरे में से निकालता है। meaning your life will no longer look the same. आपका जो जीवन है वो पहले जैसा नहीं, He redeems your life. वो आपको सत्यानाश के What- गड्ढे से निकाल लेता है। Whatever your background is, whatever your past is, He reshapes it. जैसे भी आपका पास्ट है, जैसे भी आपका बैकग्राउंड है, वो आपको नया कर देता है, दोबारा And बना then, देता है। and then He says He crowns you with steadfast love and mercy. और वो फिर कहता है कि वो आपको आपके सिर को आपको मुकुट पहनाता है। He is not just balancing the books of what you have lost and bringing the balance of, oh, this is like minus here, so let me just add plus so that it will just equivalent to zero. No. He is not interested in balancing the book. He is interested in much more. और वो सिर्फ बैलेंस करना ही नहीं चाहता है, वो आपके जीवन में बहुत आयत को चाहता है। That's why He crowns you with steadfast love and mercy. और इसलिए वो आपके प्राण को करुणा और दया के मुकुट से बांधता है। Amen. हमें Look at the benefits. और आप इन आशीषों को देखें, Forgiveness, क्षमा, healing, चंगाई redemption, और छुटकारा, being crowned. और जो मुकुट पहनाया जाना। And then He says, so that you can be satisfied with good things. और इसलिए कि आपकी लालसा उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाए। Oh man, you've been dying for that new job because you just want to have that new brand of biryani. और आप उस जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं कि आप इस बिरयानी को खा सकें। But I'm telling you, more than you being concerned of being satisfied with good things, it is your Father's desire that you be satisfied with good things. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इससे ज्यादा कि आप चाहें, परमेश्वर आपको चाहता है कि आपका जीवन तृप्त किया जाए बहुत आयत और अच्छी बातों से। But it begins with और ये शुरुआत होती है forgiveness, क्षमा से, healing, चंगाई से, redemption, छुटकारे से, being crowned, और मुकुट पहनाए जाने से, and then you are satisfied. और फिर आप तृप्त किए जाते हैं। Amen. आमीन। If all of these 5 benefits happen, अगर ये सभी 5 आशीष आपके जीवन में आ जाएं, the Bible says, तो वचन कहता है your youth is renewed like the eagles. और तेरी जवानी उकाब के समान नहीं की जाती है। Oh, Amen. all the old people and people who think they are old, I'm telling you, God has the potential to renew your youth. और जितने भी बूढ़े लोग हैं, आप ये सुने कि परमेश्वर आपके जवानी को उकाब के समान नया कर देता है। Do you know what it means that your youth is renewed like the eagle? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है कि आपकी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए। There's a Jewish understanding और ये यहाँ पे एक यहूदी सोच है that when an eagle is 40 years old, और जो उकाब है, जब वो 40 साल का हो जाता है, he has a decision to make. उसके पास एक निर्णय लेने के लिए होता है। Because his feathers, his wings are too heavy now. और उसके जो पंख हैं वो बहुत ही भारी हो चुके हैं। So the eagle cannot fly very high as it used to. और ये जो उकाब है वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता पहले की तरह। And the nails have become too long. उसके जो नाखून है वो इतने लंबे हो चुके हैं। So the eagle cannot catch the prey so easily. और इसलिए अब वो शिकार नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। And the beak has bent so much और उसकी चोंच इतनी मुड़ चुकी है that it cannot nibble on the prey. और इसलिए वो अपने जो शिकार है उसको खा नहीं सकता। So the eagle has to make a decision. तो उकाब को यहाँ पर एक निर्णय लेना है। Because the eagle has the capacity and the potential to live up to 70 years. उकाब के पास ये क्षमता है कि वो 70 साल तक जीवित रह सकता है। But at the age of 40, when all of these things happen, his body is not moving as it used to. The eagle has to make a और decision. 40 साल की उम्र में जब ये सारी बातें उसके जीवन में हो रही हैं, तो वो उसके पास एक निर्णय है जो उसको लेना जरूरी है। 2 choices. दो निर्णय। First choice, पहला निर्णय that be as it is, just leave it as it is and then die slowly. कि वो जैसा है वैसा रहे और धीरे धीरे मर जाए। The second choice और is, दूसरा निर्णय, the eagle can go up to a mountain, ये उकाब पहाड़ के ऊपर जा सकता है, on a high mountain, और एक ऊंचे पर्वत के ऊपर, and go through a process of renewal. और एक रिन्यूअल की प्रोसेस में जाए, नएपन के प्रोसेस में जाए। That process of renewal takes 5 months. और ये नवीनीकरण का जो प्रोसेस है उसमें 5 महीने लगते हैं। That's why he's going to the mountain, इसलिए वो पर्वत पर जा रहा है, so that the eagle is not attacked by
his enemies. ताकि वो उकाब जो है वो अपने शत्रुओं के द्वारा उस पर अटैक ना किया जाए। Now, in the 5 months, और 5 महीने में the first thing that he does, पहली चीज वो जो करता है, he takes his beak, वो अपनी चोंच को लेता है keeps hitting on the rock और वो जो पत्थर पर अपनी चोंच को मारता रहता है till it breaks. जब तक कि वो टूट ना जाए। Because once the beak breaks, और एक बार जब उसकी चोंच टूट जाए, it's a painful process, ये एक दर्दपूर्ण एक प्रोसेस है, but it's a renewal process. परंतु ये नवीनीकरण का प्रोसेस है। So as soon as the beak breaks, और जब उसकी चोंच टूट जाती है, the beak will take some time and the new beak will take some time to और जो come. नई जो चोंच है वो आने में थोड़ा समय लगता है It waits patiently for the new beak to और come. वो धैर्य के साथ वेट करता है। Once he has the new beak, और जब उसके पास नई चोंच आ जाता है uses a new beak to break his nails. और वो अपने चोंच को इस्तेमाल करता है, नए चोंच को इस्तेमाल करता है अपने नाखूनों को तोड़ने के He लिए, tries to take it off और वो खींचता और ट्राई करता है कि उसको निकाल दे one by one. एक एक करके, It doesn't look beautiful, और वो अच्छा नहीं दिखता है, but it's required for him. परंतु ये उसके लिए जरूरी है। Once all the nails are gone, और एक बार जब सारे नाखून निकल जाएं, he waits for the nails to come back. और वो इंतजार करता है कि उसके नाखून वापस आएं, Once the new nails begin to come और back, एक बार जब नए नाखून आ जाते हैं he starts plucking his old feathers और off वो the अपने wall. पुराने भारी जो पंख हैं उसको निकालना शुरू करता है। Because once the feathers are gone, और क्योंकि एक बार जब उसके पंख निकल जाएं, the new feathers come. नए पंख वापस आते हैं Now he is new. और अब वो नया हो गया है, He has been restored. उसको रिस्टोर कर दिया गया है, नया कर दिया गया है। The eagle on the mountain represents you and me. और वो उकाब जो पर्वत के ऊपर है वो हमें दर्शाता है, Because the mountain represents the presence of God. क्योंकि जो पर्वत है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। That's why the psalmist says, "Oh, bless the Lord, oh my soul." और इसलिए भजनकार कहता है कि ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। He is inviting you to the mountain. और वो आपको आमंत्रित कर रहा है उस पर्वत के ऊपर, Come to the mountain. पर्वत के ऊपर आ जाओ। I know that you've heard the gospel. मैं जानता हूँ कि आपने सुसमाचार को सुना I है, know that you know the gospel. और मैं जानता हूँ कि तुम सुसमाचार को But जानते you हो, need a renewal. परंतु तुम्हें नवीनीकरण की जरूरत है। Your mind has expired the gospel. आपके जो मन है उसमें सुसमाचार एक्सपायर हो गया है, And because of which your mind needs to be renewed. इसलिए आपके मन को नया होना जरूरी है। Come to the mountain. और पर्वत पर आ जाओ, Because as you come to the mountain of God, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पर्वत पर आ जाओ you begin to realize all the benefits that God और has. धीरे धीरे आप परमेश्वर के आशीषों को सोचने लगते हो। He forgives all your वो iniquities. आपके अधर्मों को क्षमा करता है, He heals all your वो आपके diseases. सभी रोगों को चंगा करता है। You know, the process of forgiveness is not easy. और ये जो क्षमा का जो प्रोसेस है वो आसान नहीं It's है, painful. और वो दर्दपूर्ण है। And I know and I understand that it's और painful. मैं समझता हूँ कि वो दर्दपूर्ण है, But if you stay in that process, परंतु आप उस प्रोसेस में जब बने रहेंगे, by the end of those 5 months when the eagle comes out, he is coming out brand new. और उस 5 महीने के बाद में जब वो उकाब वापस आता है तो वो बिल्कुल नया होके वापस आता है। By the time you get out of God's presence, you have been renewed. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से वापस आ रहे हैं तो आप नए होकर वापस आ रहे हैं, The old mindset has been और crucified. आपका जो पुराना मानसिकता है वो क्रूसीफाई कर दिया You गया है, got a क्रूस पर चढ़ा दिया गया new है, mind. और आपको नया मन मिल You गया है, got a new heart. आपको नया हृदय मिल गया You है, got a new body. आपको नया शरीर मिल गया है। In fact, the Bible says if you can renew your minds, you will be transformed. और अगर बाइबल कहता है कि अगर आप अपने मन को नया कर ले तो आप बदल जाओगे। You know, that transformation is not just talking about internal और transformation. जो बदलना है वो सिर्फ अंदरूनी बदलना नहीं है। Do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewal of your mind. The word transformed there is the same word as transfigured. और अपने मन के नए हो जाने से आप नए होते जाओ। यहाँ पे जो बदलना है उसका मतलब है बिल्कुल नए हो जाना, ट्रांसफिगर हो जाना। Remember, Jesus was transfigured? और आप जानते हैं कि यीशु मसीह पर्वत के ऊपर बदल गया, That was not just internal transformation.
और वो सिर्फ अंदरूनी बदलना It नहीं was था, such a transformation that it showed on his clothes. और इतना बदलना था कि उसके कपड़ों में भी वो बदलाव दिख रहा था। There's a potential for God to transform you that it will show on your clothes. और वो बदलना आपके पास वो योग्यता है कि आपके कपड़ों में भी वो महिमा दिखाई दे। You have the potential to be transformed from inside out, that it will start beginning to show on your clothes. आपके पास वो योग्यता कि वो आप अंदर से बदल जाएं और आपका बाहर भी, आपका शरीर भी, आपके कपड़े भी बदलना शुरू हो जाएं। That's why people began to get healed once they were touching the clothes of the apostles. और इसलिए जब लोग अपोस्टल जो परमेश्वर के लोग हैं उनको छूना शुरू किए तो वो चंगाई प्राप्त करने लगे। Why? Because the glory has the capacity to not just stay there but to flow inside out. और जो महिमा है उसमें वो योग्यता है कि वो सिर्फ आपके अंदर ना रहे परंतु आपके अंदर से बाहर बहे। Every place you leave a footprint. हर जगह जब आप अपने जूतों के चिन्ह को छोड़ते हैं, When a sick person walks along that way, और जब बीमार व्यक्ति उस रास्ते पे जाता है, he can get healed. वो आपके जूतों के चिन्ह के ऊपर पैर रखने के द्वारा चंगाई प्राप्त कर सकता है। Demons can flee. और जो दुष्ट आत्मा छोड़ सकते हैं उनको, He can experience complete peace. और वो परमेश्वर की शांति को रिसीव कर सकता है। Because the glory that is within you क्योंकि जो महिमा आप में है is an atomic power of God. वो एटॉमिक सामर्थ है परमेश्वर का। Is an atomic power of वो God. परमेश्वर के एटॉमिक सामर्थ है। All it requires for you, और सिर्फ आपको यही करना है, all it requires for you आपको सिर्फ यही करना है is to be connected. कि आप परमेश्वर से कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, You know, जुड़े रहें। you don't do anything to be connected. आपको कुछ नहीं करना कि आप परमेश्वर से जुड़ जाएं। Jesus has connected you to the life source. यीशु मसीह ने आपको उस जीवन स्रोत में जोड़ दिया है, But He is giving you the option to switch it on. परंतु परमेश्वर आपको ये चुनाव दे रहा है कि आप उस बटन को ऑन करें। Switch it on. बोले ऑन करें, Switch it on. स्विच इट ऑन। That switch is in your mind and your heart. और वो जो स्विच है वो आपके मन में है। The day you decide that the power of God will flow through my life, that very day it begins to switch on and it starts flowing and through your और जब life. ये आप निर्णय ले लें कि परमेश्वर का सामर्थ मुझसे बहेगा, उसी दिन परमेश्वर का सामर्थ आपसे बहना शुरू करेगा। My friends, the devil does not want you to know this. मेरे दोस्तों, शैतान ये नहीं चाहता कि आप इस बात को And जानें। that's why the devil will try every trick in the book so that you will keep that power being switched off. और वो किताब के हर एक उन ट्रिक को इस्तेमाल करेगा कि आप इस बात से अनजान रहें। And that's why the devil will throw condemnation at और you. आपको जो शैतान आपके ऊपर कॉन्डेमनेशन को He'll भेजेगा, throw sin at you. आपके ऊपर पाप को He'll भेजेगा, throw shame at you. आपके ऊपर लज्जा को He'll भेजेगा, throw guilt at you. आपके ऊपर गिल्ट को भेजेगा, Because he knows what you carry. क्योंकि वो जानता है कि आपके अंदर वो क्या है। You know, I feel in my spirit right now that the devil has more revelation of what you carry than what you know. मैं अपने आत्मा में समझ सकता हूं कि शैतान के पास वो ज्यादा प्रकाशन है उससे कि आपके पास जो है। वो ठीक से बोला नहीं, एक और बोलना पड़ेगा। शैतान के पास आपसे ज्यादा प्रकाशन है कि आपके अंदर क्या है, हाँ, इसलिए वो डरता है. That's why he's so scared. इसलिए वो डरता है। And since you were born, he was throwing lies at you और जब से आप जन्मे हैं वो आपके ऊपर झूठ को to फेंक रहा है limit you. कि आपको वो सीमित कर दे। He knew that you were going to become a man who will proclaim the gospel. और वो जानता था कि आप वो ऐसे मनुष्य बनेंगे जो सुसमाचार को प्रोक्लेम करेगा। He knew that through you 10 cities will be saved. वो जानता था कि आपके द्वारा 10 शहर बचाए जाएंगे। So what does he do? और तो वो क्या करता है? He throws his entire legion at तो you वो अपने पूरे सेना को आपके ऊपर भेज देता and है tells you, और वो बोलता है you cannot do this. तू ये नहीं कर सकता, You are insane. आप पागल हैं, You don't have the capacity. आपके पास योग्यता You नहीं don't है, have the potential. आपके पास योग्यता You नहीं are है, so sinful. आप पापी लोग हैं, You cannot do this. आप ये कर ही नहीं सकते। You know, whenever the devil throws something at you like जब this, शैतान इन बातों को आपके ऊपर ऐसा छोड़ता है say yes. और बोले हाँ Yes. हाँ, I cannot do it. मैं ये नहीं कर सकता, But I know the one who can do पर it मैं through उसको me. जानता हूँ जो मेरे द्वारा ये कर सकता है। It has nothing to do with me. और इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं It has है, everything to do through me. इसका मेरे द्वारा होना है। I cannot do it. मैं ये नहीं कर सकता, But Jesus can. परंतु यीशु मसीह कर And सकता He है will. और वो करेगा। And I'm saying yes to Jesus right now. और मैं अभी हाँ बोलता हूँ प्रभु यीशु Let मसीह Him को, flow right now in और- the name of Jesus. और अभी वो बहने
कहने लगे प्रभु यीशु के नाम से, the king of God's kingdom is within you. और परमेश्वर का राज्य आप में है। And when he doesn't come empty-handed. He brings the reality of his kingdom. और वो राजा अकेला नहीं आता, वो अपने राज्य की वास्तविकता को लेकर आता The है। reality of his kingdom is righteousness. और वास्तविकता उस राज्य की यह है कि धार्मिकता, The reality of the kingdom is peace, और शांति उस राज्य की वास्तविकता है, joy, और आनंद, love, और प्रेम, power, और सामर्थ, power to trample over serpents, और सांपों के ऊपर सामर्थ, power to break every chain, और हर एक बंधन को तोड़ने का सामर्थ, power to crush the serpent. और सांप को कुचलने का I सामर्थ। declare this in your life that you are activated to proclaim the gospel right now. और डिक्लेयर करें कि आपके ऊपर वो सामर्थ है सुसमाचार को सुनाने के लिए, Receive the boldness to preach the gospel. और सामर्थ को पाए इसी समय, बोलनेस को Receive प्राप्त करें, the boldness to preach the gospel. बोलनेस को प्राप्त करें सुसमाचार को I सुनाने hear के the लिए। Lord saying, और मैं सुनता हूँ परमेश्वर have को, I not commanded you? और मैंने क्या आपको नहीं बोला? Have I not commanded क्या you? मैंने तुम्हें नहीं बोला? Stand tall and stand courageous. और सामर्थ्य रूप से खड़े हो जाएं, Stand tall and stand और courageous. उठकर खड़े हो जाएं For सामर्थ्य रूप में। as I was with Moses, I shall be with you. और जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ For खड़ा as I was होऊंगा, with Moses, I shall be with you. और जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ खड़ा I होऊंगा। release the spirit of boldness over your और मैं life आपके ऊपर बोलने की आत्मा को बोलता हूँ, to preach the gospel unashamed, और सुसमाचार को आप बिना लज्जा के द्वारा सुना to सके, preach the gospel without fear, और बिना डर के सुसमाचार को आप सुना to सके, preach the gospel without any guilt. और बिना किसी गिल्ट के सुसमाचार को आप सुना सके। Amen. आमेन। Amen. Shekheredi adaramakhaseredi. The power of God does not flow externally, it flows inside out. जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो बाहर से बहता नहीं है, वो आपके अंदर से बहता है, It flows inside out. और वो अंदर से बाहर की ओर बहता है। You have the power within you. आपके अंदर सामर्थ्य है, Let it flow inside out. और उसको बहने दे अपने अंदर से बाहर की ओर। Let it flow inside out. आपको उसको बहने दे अपने अंदर से बाहर की ओर। 2 Corinthians chapter 4 verse 7 says, और we are treasures in jars of clay. और दूसरा कोरिन्थियों कहता है कि हम उस मिट्टी के बर्तन में हम एक बहुमूल्य पदार्थ हैं। We are treasures in jars of clay. हम बहुमूल्य पदार्थ हैं उस मिट्टी के बर्तनों में। What you see is a jar of clay. और जो आप देख रहे हैं वो मिट्टी का बर्तन है, But don't underestimate, there's a treasure. परंतु आप इसको छोटा ना समझे, उसके अंदर एक बहुमूल्य पदार्थ है, There's a treasure of God's power. और परमेश्वर के सामर्थ का बहुमूल्य पदार्थ उसमें है। Can I give you a secret? क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? Whenever there's a crack in the earthen vessel, और जब भी उस मिट्टी के बर्तन में एक क्रैक आता है, the treasure is seen more. और जो उसके अंदर जो है वो ज्यादा दिखना शुरू हो जाता The है, treasure can flow more. और उसमें से वो जो ट्रेजर वो बहना शुरू हो जाता है। You know, पदार्थ what the devil is using to condemn you and limit you is the very same thing God can use to flow in and through your life. जो शैतान आपको तोड़ने और आपको लज्जा करने में जो इस्तेमाल कर रहा है, वही बातों को परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। The offense that he is bringing so that he can limit you, that very same offense can be the crack that can let the treasure out. और जिन बातों को आपको सीमित करने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है, उन्हीं बातों से वो जो क्रैक है वो फूटेगा, और वो जो पदार्थ है वो बाहर आएगा। The betrayal that you're holding on to is the same crack that God can use to bring out his glory. वो चोट वो वही क्रैक है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है कि उस पदार्थ को, उस महिमामय पदार्थ को वो बाहर ले आए। The sickness that you're so ashamed of is the same crack through which the glory of God can come through. उस बीमारी से जो आप लज्जा खाते हैं, वही सेम क्रैक है जिससे परमेश्वर अपनी महिमा को इस्तेमाल कर सकता है। So be unashamed. और इसलिए बिना लज्जा के आप खड़े रहें, Be unashamed. बिना लज्जा के खड़े रहें। Tell the devil today, और इसी समय शैतान को बोले, bring it on. ले आओ, Bring it on. ले आओ, Bring it on. ले आओ, Bring it on. ले आओ। Because whatever you do will not stand against the treasure that God has put in कि me. जो भी तू लेकर आए उन बातों के सामने खड़ा नहीं हो सकता जो परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया है। Every crack in me will allow the power of the Holy Spirit to flow.
मुझ में हर एक वो क्रैक ये इन बातों को सुनिश्चित करेगा कि परमेश्वर का महिमा उसमें से बहने के लिए Every imperfection in my flesh will allow the Holy Spirit to flow in and through my life. ओ हर एक इम्परफेक्शन इस बात को निश्चित करेगा कि उसमें से परमेश्वर की महिमा निकले। Amen. आमेन। Your very weakness और आपकी कमजोरी that the devil uses to disqualify you जो शैतान इस्तेमाल करता है आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए is the same thing that has qualified you by God. और इसलिए परमेश्वर ने आपको उन्हीं बातों के लिए क्वालिफाई किया है। वही कमजोरी जो आपको डिस्क्वालीफाई करता है परमेश्वर की शक्ति से, वही कमजोरी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है जिससे परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में आए। आमेन आमेन। Amen. Come on, will you rise up? आइए हम खड़े हो जाएं। Just take a moment just to thank God for the gospel. और कुछ समय लें और परमेश्वर के सुसमाचार का धन्यवाद करें। For the gospel is the power of God. परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। For the gospel is the power of God. सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। For the gospel is the power of God. सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। If you have believed in the gospel, you have this power within you. अगर आपने सुसमाचार पर विश्वास किया है तो ये सामर्थ आप में है। The power of resurrection is within you. पुनरुत्थान का आत्मा आप में है। The same power that Jesus has, you have. और वही सामर्थ जो यीशु मसीह के पास था आप में भी है। You have the power of resurrection within आप you. में इस पुनरुत्थान का आत्मा है। Come on, stir it up, stir it up, stir it up, stir सभी it up. प्रार्थना करें। ओ Stir it up. Power flows when you say yes. और सामर्थ बहता है जब आप हाँ बोलते हैं। Power flows when you say yes. सामर्थ बहता है जब आप हाँ बोलते हैं। Because you are plugged into the supply of God. क्योंकि आपको परमेश्वर के उस जीवन के स्रोत में प्लग कर दिया गया है। Power will flow when you say yes. ओ सामर्थ बहेगा जब आप हाँ बोलेंगे। Say yes. बोले हाँ। Say yes. बोले हाँ। Tell God, I am ready and I'm willing. परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ। I am willing and I'm available. मैं उपलब्ध हूँ और मैं तैयार हूँ। I am ready, I'm willing and I'm मैं available. उपलब्ध हूँ मैं तैयार हूँ पिता Let it परमेश्वर। flow. ओ बहने दें। I receive your power. ओ मैं आपके सामर्थ को I रिसीव करता हूँ। receive your power. मैं आपके सामर्थ को रिसीव I करता हूँ। receive your power. मैं आपको सामर्थ को रिसीव I करता हूँ। receive your power. मैं आपके सामर्थ को प्राप्त करता हूँ। I have the power of और resurrection. मुझ में उस पुनरुत्थान का आत्मा है, I सामर्थ have the है। power of resurrection. मेरे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ है। I'm telling you, my friends, there's power in your words. The moment you say it, you are releasing faith. So open your mouth and speak right now. आपके शब्दों में सामर्थ है, इसलिए मैं कहता हूँ अपने मुंह को खोलें और बोलना शुरू करें। Release your faith. अपने विश्वास को रिलीज करें। You feel it or you don't feel it is of no consequence. अगर आप महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है। आप बोलना शुरू करें Just believe and release your faith. और विश्वास के द्वारा बोलना शुरू करें। Say with me, I have the spirit of resurrection. मेरे साथ बोले, मेरे अंदर पुनरुत्थान का आत्मा है। I have the power of resurrection. मेरे पास पुनरुत्थान का सामर्थ The है surpassing power of God is within और me. परमेश्वर का सामर्थ मुझ में है। The surpassing power of God is in me. और परमेश्वर का सामर्थ मुझ में है। The overflowing power of God is in me. ओ परमेश्वर का बहने वाला सामर्थ मुझ में The है। power over sin is within me. ओ पाप के ऊपर सामर्थ मुझ में है। The power over shame is within me. ओ लज्जा के ऊपर सामर्थ मुझ में है। The power over demonic forces is within ओ me. शैतान के ऊपर सामर्थ मुझ में है। The power over death is within ओ me. मृत्यु के ऊपर सामर्थ मुझ में I है। have the power of God. ओ मुझ में परमेश्वर का सामर्थ है I move in the power of God. और मैं परमेश्वर के सामर्थ में चलता I और फिरता हूँ। move in the power of मैं God. परमेश्वर के सामर्थ में चलता फिरता हूँ। I move in the power of God. मैं परमेश्वर के सामर्थ में चलता I हूँ। move in the power of मैं God. परमेश्वर के सामर्थ में चलता हूँ। ओ Ria la 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 la. Ra la re 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 ria la la ria la 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 la. Oh ria la 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 la. Re ria la la baga she ria la 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 la.
If you are somebody अगर आप वो व्यक्ति हैं who has been contending something for years और बहुत सालों से आप इस बात को सोच रहे हैं and has been expecting a breakthrough in your life, और आप अपेक्षा कर रहे हैं उस ब्रेक थ्रू के लिए आपके जीवन में, just raise your hands. अपने हाथों को उठाएं, Raise your hands. अपने हाथों को उठाएं। Today, by faith, raise your hands. आप आज विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएं। Today, by faith, raise your hands आज आप विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएं and declare this. और ये आपकी घोषणा करें, Breakthrough is now. और छुटकारा अभी है, Breakthrough is छुटकारा now. अभी है, Breakthrough is now. छुटकारा अभी है, Breakthrough is now. छुटकारा अभी है। Today is the day of salvation. अभी उद्धार का दिन है, Today is the day of salvation. आज उद्धार का दिन है Breakthrough is now. और छुटकारा आज है। I receive your now breakthrough. और अभी मैं आपके उस छुटकारे को प्राप्त करता हूँ, I receive your now breakthrough. और मैं अभी के छुटकारे को प्राप्त करता You हूँ। might have waited for so many years, but I can tell you that there's a stirring up in the heavenlies, that the suddenlies of God is coming through right now. और आपने बहुत सालों तक इस इंतजार किया है, परंतु परमेश्वर का सडनली वाला मिरेकल सामर्थ आपके जीवन में The अभी आ रहा है। suddenly of God. सडनली परमेश्वर का, The suddenlies of और God. अचानक, The suddenlies of और God. परमेश्वर का अचानक The आने वाला suddenlies सामर्थ, of God is hitting you right now परमेश्वर in का the name of अचानक- Jesus. परमेश्वर का अचानक आने वाला सामर्थ अभी आपको छू रहा है। Receive it. अभी प्राप्त करें, Receive it. अभी प्राप्त करें, Receive it. अभी प्राप्त करें, Receive it by faith. अभी प्राप्त करें। Receive it by प्रभु faith. यीशु के नाम में अभी प्राप्त Receive it करें, by faith. विश्वास के द्वारा अभी प्राप्त करें। Every door that was meant to be open, I say open right now in the name of Jesus. हर एक उन दरवाजों को जो खुलना था, मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए। Every ancient gates be lifted up. हर एक वो गेट्स खुल जाए, Every ancient gates be lifted up. हर एक पुराने दरवाजे खुल जाए, For the King of Glory comes in. क्योंकि महिमा का परमेश्वर प्रवेश कर The रहा है, King of Glory has come in. क्योंकि महिमा का परमेश्वर The आ King गया of है, Glory has come in. क्योंकि महिमा का परमेश्वर अंदर आ गया है। Lord, you arise ओ परमेश्वर आप उठ खड़े and let your हो enemies be scattered. और आपके विरोधी फैला दिए जाए। You arise. आप उठ खड़े हो, Let your enemies be scattered. आपके विरोधी नष्ट हो Enemies be जाए, scattered. आपके विरोधी नष्ट Enemies हो be जाए, scattered. आपके विरोधी नष्ट हो जाए। Yeah. Breakthrough is now, छुटकारा अभी है, not tomorrow. Breakthrough नहीं। is now. छुटकारा आज है, अभी Healing है, is now. ओ चंगाई अभी है, Deliverance is now. छुटकारा अभी है, Salvation is now. उद्धार अभी है। God is a God of now. परमेश्वर आज का परमेश्वर God है, is a God of now. परमेश्वर अभी का परमेश्वर God है, is a God of now. परमेश्वर अभी का परमेश्वर God is a है, God of now. परमेश्वर अभी का परमेश्वर है। Yay! Yes. Amen. Ah, Jesus. I see faith rising up. मैं देखता हूँ विश्वास को खड़े होते हुए, I see faith rising मैं up. विश्वास को उठते हुए देखता हूँ। Don't doubt. Let it rise up. ओ Let faith rise up. विश्वास उठना शुरू हो जाए, Rise up. ओ विश्वास उठना शुरू हो जाए। Happens right now. ओ इसी हुआ, Breakthrough is now. ओ छुटकारा अभी है, Breakthrough is now. छुटकारा अभी है, Breakthrough is now. छुटकारा अभी है, Breakthrough is now. छुटकारा अभी है। I feel a strong pull from the online people, and I want to tell you, breakthrough is now. ऑनलाइन लोगों के लिए मैं देखता हूँ छुटकारा अभी है। Whoever it is, और जो भी व्यक्ति है, if you believe that Jesus was raised from the dead अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मृत्युओं में से जी उठा है and He is the only Lord of your life. और वो ही सिर्फ अकेला परमेश्वर है आपके जीवन का, Oh man, let me say this again. और मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, Jesus has to become the only Lord of your life. यीशु मसीह को आपके जीवन का अकेला परमेश्वर बनना जरूरी है। You can't try Jesus and try other gods. और आप यीशु को और दूसरे देवताओं को नहीं
कर सकते हैं एक साथ। Only Jesus. और सिर्फ यीशु मसीह। You will encounter this power if you say, Jesus is my only Lord. आप इस सामर्थ को पाएंगे जब आप कहेंगे कि यीशु मसीह मेरा सिर्फ अकेला परमेश्वर My है। only Lord. यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। My only Lord. यीशु मसीह ही अकेला मेरा Who was परमेश्वर है, raised from the dead. जो जीवित, जो मृत्यु में से उठाया गया, Lives in me right और वो now. मुझ में जीवित है, Lives in me और right वो now. मुझ में जीता है। I am talking to you. Breakthrough is now. और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका छुटकारा अभी है। Breakthrough is आपका छुटकारा now. अभी है। Riyadadabaga shedededededede. Radadabaga sekeredi, yadadamaga shekeredi. If there's anybody over here who needs healing in your body, और अगर आप यहाँ पे कोई है जो चंगाई को प्राप्त करना चाहता है अपने शरीर में, keep your hand over the area where you need healing. और अपने हाथ को वहाँ रखें जहाँ पर आपको चंगाई की जरूरत है। If it is an area that is not appropriate, just keep your hand over your heart. अगर ऐसी वो जगह है जहाँ पर आप नहीं रख सकते तो आप अपने हृदय में हाथ रखें। Come on, keep your hand. Keep your hand by faith. Healing flows विश्वास right के द्वारा now. हाथ रखें, Healing flows right now. और चंगाई अभी बह रही है, The healing of Jesus flows right now. और चंगाई, परमेश्वर की चंगाई अभी बह रही है। Jesus died यीशु मसीह मरा so that you will have life. ताकि आप जीवन को पाएं, The life of Jesus flows in and through you right और now. जीवन का प्रभु यीशु मसीह का जीवन अभी आपके Right अंदर से बह रहा now. है। अभी इसी वक्त, Right now. अभी इसी वक्त Life of Jesus. यीशु मसीह का जीवन, Life of Jesus. यीशु मसीह का जीवन, The righteousness of God. और परमेश्वर की धार्मिकता, The righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता, You are plugged into the source of who God is. और आप उस सोर्स में प्लग किए गए हैं जो You परमेश्वर है, cannot be plugged into life and have sickness. और आप जीवन के स्रोत से जुड़े हुए हैं और आपके जीवन में बीमारी नहीं हो सकती। Receive it. और इसी समय आप रिसीव करें, Say, I receive healing. बोले मैं चंगाई को प्राप्त करता हूँ, I receive healing. मैं चंगाई को प्राप्त करता हूँ, I receive healing. मैं चंगाई को प्राप्त करता हूँ, Healing is now. और चंगाई अभी है, Healing is और now. चंगाई अभी है, Healing is now. चंगाई अभी है, Wholeness is mine. और बोल जो परिपूर्णता मेरा है, Wholeness is mine. परिपूर्णता मेरा है, I receive healing to wholeness. और मैं चंगाई से परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा हूँ, Healing to wholeness. चंगाई से परिपूर्णता। When you receive wholeness, there will be no trace of sickness in your body. जब आप परिपूर्णता को लेते हैं आपके जीवन में बीमारी का कोई भी चिन्ह भी नहीं You रहेगा, will be completely new. आप बिल्कुल नए हो जाएंगे। I declare right now in the name of Jesus, you are moving from healing to wholeness. और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप चंगाई से परिपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, Healing to wholeness. चंगाई से परिपूर्णता। Every internal part of your body that is missing is recreated right now in the name of और Jesus. हर एक वो अंग जो आपके शरीर से गुम है उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं कि नया हो जाए, Healing to wholeness. और चंगाई से परिपूर्णता। I see somebody has been threatened, somebody has been crowned with so much anxiety that they cannot think right. और मैं देखता हूँ ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी से भरे हैं कि आप सही से सोच भी नहीं सकते हैं। I speak the peace of God और right मैं now. परमेश्वर की शांति को इस समय आपके ऊपर बोलता The हूँ, peace of God restores your mind right और now. परमेश्वर का सामर्थ्य आपके मनों को नया कर The रहा है, peace of God brings wholeness into your life और right now. परमेश्वर का शांति आपके जीवन को Right नया कर रहा now. है, That anxiety will not stand anymore. और वो एंजाइटी आपके जीवन में अब नहीं You have the रहेगी। peace of God. आपके पास परमेश्वर की शांति है, Peace of God. परमेश्वर की शांति। Receive the peace of God. इसी समय परमेश्वर की शांति The को प्राप्त peace that करें, brings restoration. और वो शांति जो रिस्टोरेशन को लेकर आता है। Yes. If there's somebody over here with leg pain in their right leg, lower part, I speak healing right now. You're healed. ऐसा व्यक्ति जो जिसके दाहिने राइट पैर में दर्द है नीचे की तरफ, मैं घोषणा करता हूँ कि आप चंगे हैं, You are healed. आप चंगे हैं, You will no longer just walk, you shall run. और आप सिर्फ चलेंगे नहीं परंतु आप दौड़ेंगे, Supernatural healing comes to you right now. और अलौकिक चंगाई आपके ऊपर आ रही है Right now. अभी Right now. अभी Restores you right now. अभी आपको नया कर रहा है, Right now. अभी आपको चंगा You कर will रहा है, no longer fear climbing stairs. और आप अब डरेंगे नहीं उन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए, Right now. आप डरेंगे नहीं You are सीढ़ियों पर healed चढ़ने in के the लिए। name of Jesus. अभी इसी वक्त आप चंगे हैं, Healed in the name of Jesus. अभी आप इस वक्त चंगे हैं। Come on, somebody having lower back issues,
I declare the healing of God right now in the name of Jesus. और किसी को पीछे लोअर बैक में दर्द है, अभी यीशु मसीह के नाम से आप चंगे The हैं। power of God comes right now, restores you completely. और परमेश्वर का सामर्थ अभी आ रहा है और आपको बिल्कुल चंगा कर रहा है। There's a mandate of God's gospel over your life. आपके जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने का आपके ऊपर अनॉइंटिंग है। You cannot preach the gospel with a broken back. आप अपने टूटे हुए कमर के द्वार के साथ सुसमाचार नहीं प्रचार So कर I सकते। speak healing right now in the इसलिए name मैं of आपके Jesus. जीवन में चंगाई को मैं बोलता हूँ Let the purpose of God come through. और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में आने पाए। Purpose of God come through. परमेश्वर की योजना आपके अंदर आने पाए। The devil tried to finish your life. और शैतान ने सोचा कि आपके जीवन को खत्म कर दे। And I hear this verse. और मैं ये इस बात को सुनता हूँ I shall not die, और मैं मरूंगा नहीं but I shall live. परंतु मैं जीवित रहूंगा And I declare the और glory of the परमेश्वर Lord. की महिमा का गुणगान Declare करूंगा the glory of the और Lord. मैं परमेश्वर की महिमा को गुणगान What the करूंगा। enemy thought for evil, God is bringing out together for His good. और शैतान ने जिन बातों को आपके विरोध के लिए लेकर आए वो परमेश्वर आपके महिमा के लिए बदल रहा है। I speak double portion over your life. और आपके ऊपर मैं दुगनी आशीष को मैं He's बोलता हूँ। replacing shame and giving you double honor. आपकी शर्म के बदले आपको दुगना आशीष, Double honor. आपकी लज्जा के बदले Double दुगना honor. आशीष, दुगना आशीष। Rejoice. ओ आनंद, Rejoice. आनंद करो, Rejoice. आनंद For करो। the King of Glory has come कि in. महिमा का परमेश्वर The अंदर King आ of गया Glory है। has come in. महिमा का परमेश्वर आ गया I है। hear somebody saying, I have lost a lot of time. और मैं सुन रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने बहुत समय व्यर्थ कर दिया है। Everybody has gone ahead of me. बहुत सारे लोग मेरे से आगे निकल गए हैं। I see Jesus stepping into your boat. और मैं देखता हूँ यीशु मसीह आपके बोट पर पैर रख And रहा the है। moment Jesus steps into your boat, और जैसे यीशु मसीह ने आपके बोट पर पैर रख you दिया, reach your आप destination. अपने जो डेस्टिनेशन में पहुंच It गए। does not take time, it happens instantly right और ये समय now. नहीं लग रहा, आप अभी Divine acceleration. एक्सेलरेशन को आपकी जीवन में बोलते हैं। All the years that the locusts have eaten, वो साल जो टिड्डियों ने खा लिया, I speak redemption. और मैं छुटकारे को बोलता हूँ। I speak redemption. मैं छुटकारे को बोलता हूँ। You'll no longer lose time. आप समय को नहीं व्यर्थ करेंगे। You'll redeem time आपका समय को परमेश्वर ने छुड़ा लिया है by walking in the will of God. और आप परमेश्वर की योजनाओं में चलते हुए God's wisdom upon you. आपका परमेश्वर का ज्ञान आपके ऊपर, God's wisdom upon you. परमेश्वर का ज्ञान आपके ऊपर, God's wisdom upon you. परमेश्वर का ज्ञान आपके ऊपर। Somebody is afraid that they have lost the purpose of God. Can I tell you, the promise has been renewed today, right now. Receive it. कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो सोचता है कि परमेश्वर के वायदे को, परमेश्वर के पर्पस को मैंने खो दिया है। परमेश्वर उन बातों को नया कर रहा है आपके जीवन में। He renews it. वो आपको जीवन में नया कर रहा He है renews it in वो- greater glory. और वो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर आपके Receive लिए नया कर रहा है। Receive it. ओ प्राप्त करें He इसी वक्त। renews it in greater glory. उससे कहीं ज्यादा महिमावान Your आपकी योजनाओं को calling बना has रहा been है। restored. आपकी कॉलिंग को कहीं ज्यादा The महिमावान बना purpose of दिया गया God है। has been restored. आपकी परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में नया कर दिया गया है। Everything that you need for this purpose to come through shall come through. जो भी बातें आपको जरूरत है इस योजना को पूरा करने के लिए वो आ रही हैं आपके जीवन में। This year will be the year of restoration. ये साल आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक रिस्टोरेशन का साल होगा। God's purpose will restore. परमेश्वर की योजना आपके जीवन में नई की जाएंगी। God's purpose will be restored. वो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में नई बनाई जाएंगी। The confidence that you have lost, जो कॉन्फिडेंस आपने खो दिया I है, speak right now वो मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में अभी। May the blood of Jesus cleanse your conscience right now and give you back your confidence. और आपके मन को प्रभु यीशु मसीह का लहू इसी समय धो दे और आपको सामर्थ दे। The blood of Jesus breaks down every stronghold, every wrong thinking, every wrong principle in your life and restores your confidence right now in the और name of इसी समय Jesus. परमेश्वर का लहू शैतान के गढ़ों को ढा रहा है आपके जीवन में और आपके जीवन में धैर्य और सामर्थ को लेकर आ रहा है इसी Receive it. वक्त। ओ प्राप्त करें इसी The समय। same boldness that David had और वही सामर्थ जो डेविड के पास थी when he stood in front of Goliath. जब वो गोलियात के सामने खड़ा I हुआ, speak the same boldness over you. और वही बोलनेस और सामर्थ आपके जीवन में मैं The बोलता हूँ। same boldness that Caleb had. और वही सामर्थ जो कालेब के पास थी, And who said, give me back my mountain. और वो बोलता है कि मुझे मेरा पहाड़ वापस दे। Receive it. उसको प्राप्त करें, Receive it. प्राप्त करें, Receive it. प्राप्त करें, Receive it. प्राप्त करें, Receive it. प्राप्त करें। Somebody, I just see a picture where somebody is so entangled in a financial mess.
और मैं देखता हूँ कोई जो आर्थिक बातों में बंधा हुआ है and you think that it is impossible for you to get out other than the power of God. और आप सोचते हैं कि मुझे इससे निकलना इम्पॉसिबल है, सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ मुझे यहाँ से निकाल सकता The है। power of God comes परमेश्वर का सामर्थ अभी आ रहा है, right now, इसी समय, right now, इसी समय, right now, इसी समय, right now. इसी समय। You are delivered. ओ आप छुड़ाए गए हैं। You're delivered. The आप- Lord is redeeming you from your pit. आपको उस सत्यानाश के गड्ढे से परमेश्वर निकाल रहा है, छुड़ा रहा है। He is crowning you. और आपको He is crowning you. और परमेश्वर आपको मुकुट पहना रहा है। He's restoring your identity. आपके आइडेंटिटी को परमेश्वर नया He कर is रहा है। restoring your identity. आपकी आइडेंटिटी को परमेश्वर नया कर रहा है। Give your finances to Jesus. और अपने आर्थिक चीजों को परमेश्वर को दें। Say with me, ओ मेरे साथ कहें, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, you are the Lord of my finances. आप मेरे फाइनेंस के परमेश्वर हैं। You are the Lord of my finances. और आप मेरे फाइनेंस के परमेश्वर हैं। Do as you please. आप जैसा चाहें आप मेरे जीवन में करें। Do as you please. आप जैसा चाहें करें प्रभु। I am yours. मैं आपका हूँ प्रभु। My finances are yours. मेरा पैसा आपका है पिता। Everything that I have is yours. जो भी मेरा है वो आपका है प्रभु। Do as you please. जैसा आप चाहें आप करें। Ah. Yes. Your mourning has been restored by the joy of the Lord. आपके रोने को परमेश्वर ने आपके आनंद में बदल दिया है। Come on, let's just thank Jesus. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद Thank you, करें। Jesus. धन्यवाद करें। Thank you, Jesus, for your blessing. धन्यवाद पिता आपके आशीषों के लिए। Thank you, Jesus, for you are the blessing. ओ धन्यवाद करते क्योंकि परमेश्वर You आप are- आशीष है मेरे लिए। You are the blessing. आप आशीष है मेरे लिए। You are the blessing. आप मेरे लिए आशीष है। You are the blessing. आप ही मेरे लिए आशीष है। You are the blessing. ओ आप आशीष है पिता। More than the forgiveness, more than the healing, you are the ओ blessing. इस क्षमा से ज्यादा, चंगाई से ज्यादा आप मेरे लिए आशीष है More than पिता। any financial blessing, you are the ओ, कोई blessing. भी आर्थिक आशीषों से कहीं ज्यादा बढ़कर आप मेरे लिए You, आशीष है you प्रभु। have become my blessing. आप मेरे आशीष बन गए हैं पिता। Come on, will you cry out to Jesus and say ओ, how क्या much you परमेश्वर love को Him, बोलेंगे ऊंचे शब्द में, how much you're grateful for Him. आप कितने धन्यवादी हैं परमेश्वर के लिए। Jesus has become your blessing. यीशु मसीह आपके आशीष बन चुका है। Jesus has become your यीशु life. मसीह आपके जीवन बन गया है। Jesus, यीशु मसीह, 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 Jesus. यीशु You're all मसीह। that I ओ need. सिर्फ आप You're चाहिए all मुझे that I पिता। need. आप ही मुझे चाहिए You पिता। are my ambition. ओ आप मेरा एम्बिशन है पिता। You are my आप desire. मेरा डिजायर है पिता। You are my परमेश्वर। desire. ओ आप मेरी You चाह are my है पिता। ambition. ओ आप मेरा एम्बिशन है पिता। Jesus, ओ यीशु, Jesus, यीशु, Jesus, यीशु, Jesus, you're all that I need. यीशु सिर्फ आप चाहिए मुझे। Yay, you're all that I सिर्फ need. आप चाहिए पिता मुझे। हाँ, ओ यस पिता। yeah.